स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। अच्छा, एक वीडियो चला रहा हूं मैं, देखना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है इसकी। The handlebars and are used to change gear. On older bikes, these used to be located on the आवाज आई क्या इसकी? Yes, Master Ji. ठीक है। down tube here, but on modern bikes, they're on the bars. They can be like this or like this. Next, we have the cassette. This is the collection of different sized cogs or sprockets on the rear wheel. These are the chain rings, and they're turned by the pedals. Bikes typically have 1, 2, or 3 chain rings. The chain connects the chain rings with the cassette. We then have the derailleurs. One at the back, and if you have more than one chain ring, you'll have... हाँ बोलो। सर इसमें कैप्शन ऑन कर दो ना, इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, one at the front too. The derailleurs are called derailleurs because they literally derail the chain, guiding it from one sprocket to the next as they move from side to side. Most derailleurs move from side to side thanks to a cable that is connected to the gear shifter. When you click the shifter, it pulls the cable tighter, which in turn pulls the derailleur a measured amount up the cassette. This also compresses a spring. To shift down, clicking the shifter releases the tension in the cable and allows the compressed spring to now extend a measured amount to guide the chain into the next gear. The most high-tech components don't have cables, but are now self-contained electronic systems. Instead of the cables actuating the gear change, the derailleurs move using little electric motors called servos. The rear derailleur contains springs and this cage with little pulley wheels in, which help guide the chain and, crucially, keep it under tension. This is important because without it, changing the size of the gear could make the chain slack and then it would slip. To help with the changing of gears and make it smoother, the teeth on the cassette and chain rings are specially shaped with little ramps to help guide the chain. Bikes have gears to help you with changes in gradient and, if desired, to increase speed on the flat. The smallest chain ring at the front paired with the biggest cog at the back is the easiest gear, ideal for steep climbs or setting off from a standstill. If your chain ring has 34 teeth and your biggest cog at the back also has 34 teeth, that is a 1-to-1 gear ratio. A relatively easy gear to turn. The rear wheel will turn once for every pedal stroke. At the opposite end, if you shift into your fastest and hardest gear, the ratio is much bigger. For example, if your biggest chain ring is 50 and your smallest cog at the back is 11, that results in a ratio of 4.55, meaning the rear wheel will spin 4.55 times for every one rotation of the pedals. This is a harder gear to get going, but is useful once you're travelling at speed or going downhill. I hope you found this video useful and informative and that you now know how bicycle gears work. If you do, then please give it... तो बच्चों गियर वाली साइकिल का क्रेज ये बोले होता है बच्चों में, जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया उनको ये लगता है कि हाँ हमारे पास जो है गियर वाली साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। जैसे नहीं सर। गाड़ी में गियर्स होते हैं,
वैसा कुछ। तो तुम लोग क्या जानते हो गियर वाली साइकिल में? अपने अपने व्यूज तुम शेयर कर सकते हो, जैसे अभी सानवी ने बोला कि नहीं। कैन यू एक्सप्लेन वो व्हाट डू वो यू नो थोड़ी हार्ड अबाउट होती है। गियर वाली वो साइकिल? बोलो। गियर वाली साइकिल थोड़ी हार्ड होती है, और उसमें ना बार बार नंबरिंग लाइक एक काइंड ऑफ, हमारे भी बिल्डिंग में ना एक लड़के के पास है गियर वाली साइकिल। मैंने ट्राई किया था ना, तो उसके राइट वाले हैंडल के इधर एक नंबर चेंज करने का था, तो उसके हिसाब से स्पीड चलता था, लाइक वो हार्ड रफ स्मूथ वैसे। नॉर्मल साइकिल में ये सब नहीं होता, आप बस चला सकते हो उसको। हार्ड होती है इन विच सेंस? समझने में, या चलाना मुश्किल पड़, चलाने के उससे। उसमें ज्यादा मेहनत लगती है क्या चलाने में? हाँ हाँ। अच्छा। और कोई? लाइक मे बी मैं गर्ल हूँ इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, लड़कों को ऐसा नहीं लगता हो, पर हाँ ये मेरा व्यू है। ओके। और बताओ, और कौन बच्चा बताएगा गियर वाली साइकिल के बारे में, वो क्या सोचता है? सर हाँ। गियर वाला साइकिल स्पेसिफिकली माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए बनाया गया है। ओके। मीन climb mountain, it will be easier if we put it in low gear, and it will be to go higher and higher. While down hills, we can make it hard, so it will be easier, and while climbing, we can make it smooth. ओके। So, can you explain in detail how it become easy to climb a mountain using cycle with gear? क्या तुमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अनीश, गियर वाली साइकिल को माउंटेन वाली रोड्स पे चलाकर? सर मेरे पास भी एक गियर वाला साइकिल है सर। मैं बहुत बार चलाया। हाई मतलब रोड भी बहुत हाई होते हैं ना, कभी कभी क्लाइंब हाँ करना पड़ता है, वो उस रोड में भी चलाया। हाँ उसमें लगा बहुत सीखता है चढ़ने में। अब जब हम नीचे डाउन नीचे जाते हैं हाँ थोड़ा स्पीड होता है, तो फिर मैं हार्ड गियर लगाता हूँ हाँ। और ज्यादा भी नहीं हो जाता। ठीक है। और मेरा नाम था जी। हाँ, खुश रहो बेटा। ठीक है, और कौन बताएगा? क्या सोचते हो तुम गियर वाली साइकिल के बारे में, और कोई बताना चाहता है? राघव, रिद्धि, युविका? कभी चलाई नहीं तो कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है माउंटेन क्लाइंबिंग में ज्यादा अच्छी रहती है। हाँ, पर क्या सोचते हो ये मुझको कैसे, बिल्कुल क्या भी होता? आइडिया नहीं है उसके बारे में, देखी भी नहीं मैंने तो। ओके। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी सुना हो, सोचा हो उसके बारे में, तो एक्सपेक्टेशन हो क्या हो जाता होगा उससे, या गियर से क्या होता होगा। तुम्हें क्या लगता है ये गियर होता क्या है? तो अभी जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें तुमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा बच्चों, जो कि तुम्हारे साइकिल में जहां चेन होती है उसमें भी होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। इसमें टीथ होते हैं, ठीक है, जिस पर चेन फंसकर चलती है। इनको क्या बोलेंगे हम? टीथ या टूथ। एक को बोलेंगे टूथ और बहुत सारे हैं तो टीथ। ये अंग्रेजी सीखा ना तुमने? टी ब्रश योर टीथ या ब्रश योर टूथ? टीथ। हाँ, ब्रश योर टीथ प्लूरल। और वो चेन जो है इसके ऊपर चलती है। अच्छा, ये तो हुआ बड़ा वाला चक्का, आगे वाला है ना, जिसपे पैडल मारते हो तुम। यहां से जो चेन चलकर जा रही है वो जा रही है पीछे वाले चक्के पर, और जो हम पीछे वाला चक्का है वो छोटा है,
वो अगर तुमने गौर किया हो, देखा हो, नहीं देखा है तो देख लेना, साइकिल तो मिल ही जाएगी कहीं पर भी। पीछे वाला चक्का छोटा है। क्या बड़े और छोटे होने से कुछ फर्क पड़ता है या नंबर ऑफ टीथ से फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो जो चेन है उसमें एक खांचा है, सॉकेट, और वो सॉकेट इसमें फिट होता है चेन में। नंबर ऑफ टीथ से फर्क, नंबर ऑफ टीथ। और छोटे और बड़े होने से नहीं पड़ेगा चक्के के। तो तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो बच्चों। ऐसा एक मॉडल बना सकते हो, तुम गत्ता काट के बना सकते हो जिसमें बहुत सारे टीथ हों। वो टीथ तुम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो और उनको मैश करके यानी मिलाकर तुम चलाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि चेन परफेक्टली हर टीथ में उसका स्लॉट जाके फंसता है, फिर वो आगे बढ़ती है, और ऐसे पीछे वाले चक्के में भी हर टीथ में वो जो चेन का स्लॉट है वो फंसता है और उससे वो घूमता है। ठीक है, तो जब हम पैडल मारते हैं तो चेन इसको चलाते हुए पीछे वाले पहिए को घुमाती है। क्या आगे वाले पहिए को घुमाने के लिए अरेंजमेंट होता है साइकिल में? व्हाट डू यू से? पीछे वाला पहिया घूमता है तो अपने आप आगे वाला भी घूम जाता है। हाँ, एक साइकिल को अगर हम देखें तो देखो, तुम्हें जो साइकिल पसंद हो वही वाली उठा लेंगे। इसी को उठा लें, ग्रीन वाले को। तो मैंने ये ग्रीन वाली साइकिल उठाई और इसको हम ले आए अपने यहां पर। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस। ओके, सो यहां पर है वो छोटा वाला गियर। गियर कहेंगे, वी कॉल इट गियर। गियर इज नथिंग। गियर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज गियर? जैसे वो था ना 3 इडियट पिक्चर में, पूछा था प्रोफेसर ने, सर ने पूछा था मशीन की डेफिनेशन क्या है, आमिर खान से पूछा था ना। देखी ना 3 इडियट तुमने? हाँ सर। मशीन की डेफिनेशन क्या है? वैसे गियर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं, ए व्हील विथ टीथ, चक्के वाला, दांतों वाला पहिया, दांतों वाला पहिया, ए व्हील विद टीथ। अब हमें इसके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्या मोटरसाइकिल में गियर होते हैं? हाँ। मोटरसाइकिल में गियर होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते। आंसर इज यस, मोटरसाइकिल हाँ। हैज गियर। कितने गियर होते हैं मोटरसाइकिल में? देखना ध्यान से, तुम्हें पता चलेगा। और इसमें गियर, बदलने क्यों नहीं पड़ते फिर? गियर को चेंज करने के लिए मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में नीचे पैडल होता है यहाँ कहीं पे। मोटरसाइकिल में कहाँ पर होते हैं गियर्स, वो बता देता हूँ मैं तुमको। गियर बदलने के लिए नीचे पैडल होता है, उससे बदलते हैं। और आपने क्या ढूंढने को बोला था? क्या कह रहे हो बेटा? आपने क्या ढूंढने को बोला था? और वो बोले थे ना मोटरसाइकिल का कुछ। नहीं, मोटरसाइकिल के लिए तो मैंने नहीं बोला कुछ भी। इस वाली मोटरसाइकिल को उठाते हैं। मैंने तुमसे ये बोला था कि भाई मॉडल बना सकते हो तुम इसका, गियर घर पे गत्ते से बना सकते हो, ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो मोटरसाइकिल में तुम देखोगे तो ये यहाँ पैर में यहाँ एक लीवर होता है और
उसको प्रेस करके हम सर गियर, कोई और मार्कर यूज करो, मैं दिख नहीं रहा है। इट इज नॉट विजिबल। बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। यहाँ एक पैडल होता है, उसको मूव करके मोटरसाइकिल में हम गियर चेंज करते हैं। चाहो तो बड़ा कर सकते हो उसको विजिबिलिटी के लिए। तो यहां पर होता है एक पैडल। तो मोटरसाइकिल में गियर होता है। क्या कार में गियर होते हैं? कार, जीप, ट्रक। हाँ होते हैं। So हाँ we can say almost every automobile, every vehicle have gears. तो अच्छा, आजकल एक व्हीकल आता है, उसमें आता है AGS, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, जिसमें गियर चेंज हमको नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। पर गियर तो उसमें भी होते हैं, यानी सभी व्हीकल्स में, सभी ऑटोमोबाइल्स में गियर्स होते ही होते हैं। तो ये गियर्स एक्चुअल में करते क्या हैं? गियर का फंक्शन क्या है? हमने अभी जो स्पीड के कंक्लूड, लेवल को बढ़ाना। हाँ, स्पीड को कंट्रोल करना है। ठीक है, देखो यहां इस साइकिल में अगर हम देख रहे हैं तो आगे वाले व्हील में घुमाने का कोई अरेंजमेंट है क्या? इसे घुमाने का पीछे वाले व्हील में, तुम पीछे वाले व्हील में देख रहे हो, तुम यहाँ पैडल मारते हो, हाँ पैडल मारते हो तो ये एक चक्का घूमता है, इस पे चेन है, पैडल मारते ये तो ये चेन जो है चेन को छोटे चक्के को घुमाती है, ये छोटा चक्का इस व्हील से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये व्हील घूमता है पीछे वाला। पीछे वाले व्हील को घुमाने का अरेंजमेंट है क्या? आगे वाले व्हील को घुमाने का कोई अरेंजमेंट है? आगे वाले व्हील को घुमाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो अपने आप घूमता है। और तुम साथ में क्यों नहीं घूमते? बिकॉज यहां पर क्या लगा हुआ है? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है? बॉल बियरिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बॉल बियरिंग क्या होता है? के अंदर छोटे छोटे बॉल। हाँ, लोहे की बॉल होती हैं। और बॉल बियरिंग वो मशीन है, मशीन पार्ट है, जिसकी वजह से तुम नहीं घूमते, साइकिल खाली घूमती है। पंखा घूमता है, पंखे की रॉड नहीं घूमती। अगर बॉल बियरिंग नहीं होता तो बच्चों साइकिल के साथ तुम भी घूमते, अगर बॉल बियरिंग नहीं होता। सो बॉल बियरिंग को भी साथ में हम समझ लेते हैं बच्चों। बॉल बियरिंग भी बहुत काम की चीज है हमारी लाइफ में। हियर इज बॉल बियरिंग। इसमें जो मेन पार्ट्स हैं उनको समझो। इट इज कॉल्ड इनर केज। अंदर की तरफ है इसलिए नाम क्या हुआ? इनर केज। केज जो किसी चीज को पकड़ ले, जैसे पिंजड़ा, तो इनर केज। इसको बोलते हैं आउटर केज। और इनके बीच में ये जो खांचे तुम देख रहे हो, इनमें बॉल से अंदर जो इनर और आउटर केज के कांटेक्ट में है, मींस इनर केज इंडिविजुअली घूम सकती है इधर, आउटर केज इंडिविजुअली घूम सकती है उसके अपोजिट। उनमें कोई रिलेशन नहीं है इनके रोटेशन की डायरेक्शन में, यानी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे के इररिस्पेक्टिव किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं अंदर वाले को और बाहर वाले को। जैसे कि विजेट स्पिनर से तुम खेले होंगे ना, विजेट स्पिनर देखा है सबने? स्पिनर है ना, स्पिनर। हाँ, विजेट स्पिनर बोलते हैं उसको। स्पिनर देखा होगा ना, खेले होंगे तुम उससे। खेले हो नहीं खेले हो? याद आ गया? पंखे वाला अलग अलग डिजाइन में आता था ना, बीच में चीन से खिलौना छोटा सा, ऐसे पकड़ लेते थे फिर एक साइड से घुमाते थे। हाँ, उसमें भी ये बॉल बियरिंग होता था बच्चों। तो जब भी हमें ऐसी कोई डिजाइन बनानी है जिसमें एक पार्ट स्टेशनरी रहे, दूसरा मूविंग हो, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी?
बॉल बॉल बेयरिंग बेयरिंग। या ऐसी कोई डिजाइन बनानी है कि एक पार्ट अलग डायरेक्शन में घूमे, दूसरा पार्ट अलग तरह से घूमे, अलग सेंस ऑफ रोटेशन हो, तो भी हमें बॉल बेयरिंग लगाना पड़ेगा। तो बॉल बेयरिंग बहुत काम की चीज है। पर बॉल बेयरिंग में टीथ नहीं होते, ठीक है, दांते नहीं होते, स्मूथ फंक्शन है उसका। तो यहाँ बॉल बेयरिंग लगा हुआ है साइकिल में, जिसकी वजह से ये पहिया घूमता है और साइकिल नहीं घूमती। यानी पहिया घूमता है, साइकिल आगे बढ़ती है। और ये पहिया घूमता किसकी वजह से है? अगर मैं तुमसे कहूं, इस पहिए के नीचे जो कांटेक्ट बन रहा है यहाँ पर, यहाँ जो कांटेक्ट बन रहा है, यहाँ अगर फ्रिक्शन नहीं हो, जहां कांटेक्ट बन रहा है, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं हो, तो क्या ये पहिया घूमेगा? नहीं घूम सकता, फिर तो साइकिल ऐसे फिसल जाएगी। हाँ, ये पहिया घूमता है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं हो तो ये नहीं घूमेगा। तो इस पहिए को घुमाता है फ्रिक्शन। पीछे वाले पहिए को तुम घुमा रहे हो पैडल मार के, और उसको भी फिसलने से रोक रहा है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये भी एक ही जगह घूम जाएगा, साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो साइकिल को आगे बढ़ाने में फ्रिक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये पहिया घूमता है क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगता है? इस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। साइकिल के अगले पहिए पर फ्रिक्शन का फोर्स लगता है पीछे की तरफ, जबकि पीछे वाले पहिए पर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करता है पीछे, तो फ्रिक्शन का फोर्स लगता है आगे की तरफ, जो उसको फिसलने से रोकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम आगे सीखोगे हायर क्लासेस में। यानी इन दोनों पे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आगे वाले पहिए पर पीछे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। पीछे वाला पहिया फिसलने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रहा है, जो कि आगे की तरफ लग रहा है। तो अब वापस आते हैं हम गियर पर। एक्चुअल में गियर करता क्या है, कैसे काम करता है, उसकी बात हम करते हैं। तो मेरे पास गियर नंबर 1, इसमें कुछ नंबर ऑफ टीथ हैं। गियर नंबर 2, इसमें कुछ नंबर ऑफ टीथ हैं। जैसा कि तुमने कहा साइज मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ टीथ मैटर करते हैं, तो मैं इस बात को मान लेता हूं। मैं इसके लिए मतलब एग्री करता हूं, सहमत हूं तुमसे। तो इसमें नंबर ऑफ टीथ अगर है 20 और इसमें भी है 20, और एक चेन है जो इनको आपस में कनेक्ट करती है। फैक्ट्रीज में भी बहुत सारी मशीनों को घुमाने के लिए हम गियर सिस्टम यूज करते हैं। अगर इसको हम 1 सेकंड में 2 चक्कर घुमाएं, तो उसको बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी। एन से दिखा सकता हूं, एफ से दिखा सकता हूं, मैं एफ से दिखा देता हूं। फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ, 2 चक्कर प्रति सेकंड, 2 साइकिल्स पर सेकंड। तो मैं इसको बोल सकता हूं 2 CPS, साइकिल पर सेकंड। तुम्हें याद आ रहा होगा, और भी तुम्हें सिखाया था 2 RPS। RPS का मतलब रिवोल्यूशन पर सेकंड। और हम इसको कह सकते हैं बच्चों 2 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। CPS, RPS और 2 हर्ट्ज। अगर मैं तुमसे कहूं इसको RPM में बदलो, कन्वर्ट इट इनटू RPM, तो करके बताओ। हियर इज द ब्लैंक, यू हैव टू फिल द ब्लैंक। यहां पर यूनिट है RPM। बताओ कौन बताएगा? 1/30। तुम सोचा भी करो साथ में बच्चों, सोचा भी करो, और सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ेगी अगर तुम ऐसी चीजों का, टीवी और मोबाइल का प्रयोग कम करोगे, तो तुम्हारे दिमाग थोड़े तेज चलेंगे। नमकीन चीजें कम खाओगे तो दिमाग थोड़े तेज चलेंगे। कैसे, उसके पीछे में मैं लॉजिकली तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा कभी। नमकीन हमारे दिमाग को कुंद बना देता है, यानी कमजोर कर देता है। और टीवी और मोबाइल देखते वक्त हमारा दिमाग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी स्टेट में चला जाता है कि वो सोच नहीं पाता, हम उतना नहीं सोच पाते। तो लिंक करना है, जब भी कोई जवाब तुमसे पूछा जाए उसके जवाब को लिंक करना आना चाहिए। साइकिल पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर। तो 1 सेकंड में 2 चक्कर हैं, तो रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब 1 मिनट में ज्यादा चक्कर होंगे कि कम होंगे? पहले तो ये बताओ। सर इसका आंसर 120 होगा क्या?
हाँ करेक्ट, क्योंकि 1 सेकंड में अगर 2 चक्कर है तो 1 मिनट में ज्यादा चक्कर होने चाहिए कि कम होने चाहिए? लॉजिकली हम ऐसे चेक करते हैं, ऑब्वियसली ज्यादा होने चाहिए, तो ज्यादा चक्कर होने चाहिए। तो 1/30 हम नहीं कह सकते, जैसे हमने हमारे दिमाग में 1/30 मान लो या कुछ कैलकुलेशन करके हमने बोला 1/30, तो तुरंत ही हमने अपनी गलती को पकड़ा कि नहीं 1/30 तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 1 मिनट में तो ज्यादा ही होंगे। तो मुझे क्या करना है, सेकंड को मिनट में बदलना है यहाँ पर। तो मैथमेटिकली इसको मैं कैसे करूंगा बच्चों, 2 CPS, उसको मैं RP या RPS को भी बदल सकते हैं ना, R कह सकते हैं उसको, रिवोल्यूशन या बोल सकते हैं साइकिल बोल सकते हैं। तो मैंने सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या किया, सेकंड को डिवाइड किया किससे, 60 से। तो सेकंड की जगह मैंने मिनट लिखा 1/60 मिनट। तो ऐसा कुछ शायद राघव ने किया और उसने जवाब बताया 1/30 RPM। ठीक है, तो इसमें गलत क्या रहा, क्या तुम बता सकते हो क्या गलती हुई? इस कन्वर्जन में क्या गलत हो गया, क्या तुम बता सकते हो? मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन करना था क्या यहाँ पे? सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो ऑब्वियसली मुझे डिवाइड ही करना पड़ेगा सेकंड को 60 से, तभी तो मिनट में कन्वर्ट होगा। क्या कहते हो, क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे? आपको 2RP डिवाइडेड बाय 1/60 करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ये जो पर है ये ऑलरेडी कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना, p का मतलब पर। तो इसको मैं अगर सही तरीके से लिखता हूं बच्चों, तो ये है 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। समझ में आया, सही तरीके से लिखा तो अब उस सेकंड को मैं मिनट में बदलता हूं, तो सेकंड को मिनट में बदलना मतलब 1/60, ये आया मिनट। नाउ यू गेट इट, ये 60 जाएगा ऊपर, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये ट्रिक हम यहाँ पे लगाते हैं। तो 60 किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को। 1 किसका दुश्मन है, 2 का। तो 1 का दुश्मन जो 60 है वो 2 का दोस्त हो गया। तो 2 × 60 इज 120 रिवोल्यूशन, मिनट अपनी जगह रह गया। इसको हम पढ़ेंगे 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी 120 RPM। सो अगर गियर 2 CPS पे घूम रहा है, यानी 120 RPM पर 1 मिनट में 120 चक्कर कर रहा है, तो गियर 1 कितने चक्कर करेगा, बोलो? 120 RPM। सबको समझ में आया? दोनों बराबर करेंगे क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ टीथ इक्वल है, सेम है, नंबर ऑफ टीथ सेम है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा बिल्कुल उसी रिदम के साथ ये भी घूमेगा। ये आधा चक्कर करेगा नंबर 2, तो नंबर 1 भी आधा चक्कर करेगा। नंबर 2 पूरा चक्कर कर लेगा तो नंबर 1 भी पूरा चक्कर करेगा। दोनों साथ साथ चलेंगे, मैच होकर, मैश होकर। पर दूसरी सिचुएशन सोचो, ये है गियर नंबर 1 जिसमें सिर्फ 10 टीथ हैं, और ये है गियर नंबर 2 जिसमें 20 टीथ हैं। तो जितने समय में गियर नंबर 2 एक चक्कर करेगा, 20 उसमें दांते हैं, तो उतने समय में गियर नंबर 1 के कितने चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे, 2। तो अगर गियर नंबर मतलब इसमें एक रेशियो हम डिफाइन करें, तो रेशियो क्या बना, अगर 1 से हम ले रहे हैं आउटपुट, इससे पहिया घूम रहा है आउटपुट, और 2 यहां से हम घुमा रहे हैं, साइकिल की बात कर लें, इसको पैडल मार के हम घुमा रहे हैं। 2 बड़ा वाला चक्का है, ये 1 छोटा वाला है,
इसमें 10 ही गियर्स हैं, सॉरी 10 टीथ हैं और इसमें 20 हैं। तो इसको अगर मैं 1 सेकंड में 2 चक्कर घुमाता हूं तो ये वाला कितने चक्कर घूम जाएगा? पहिया, साइकिल का पहिया कितने चक्कर घूम जाएगा? 4। 4। वेरी गुड। तो कैसे 4? क्योंकि एक चक्कर में इसमें 20 टीथ में चेन घूमेगी, इसमें चेन के 10 स्लॉट जाने से ही ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा। फास्ट घूमेगा ये वाला, नंबर 1 फास्ट घूमेगा, क्योंकि अभी 10 स्लॉट और बाकी हैं। तो उस वजह से ये 2 चक्कर घूम जाएगा उतनी देर में, जितनी देर में नंबर 2 एक चक्कर घूमेगा। जितनी देर में नंबर 2 एक चक्कर घूमेगा उतनी देर में नंबर 1 2 चक्कर घूम जाएगा, क्योंकि इसमें 20 दांतें हैं, इसमें सिर्फ 10 हैं। देयर आर 10 टूथ ओनली। और तुम देख रहे हो कि चेन मैश होकर चलेगी एकदम, तो ये फास्ट घूम जाएगा। तो गियर बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। तो क्या इसमें एनर्जी क्रिएट हो गई बच्चों? कि यहां तो एक नहीं। चक्कर घुमाने की एनर्जी लगाई हमने या वर्क किया और पहिया 2 चक्कर घूम गया, तो क्या हमने एनर्जी क्रिएट कर ली? नहीं। हाँ, तुमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका स्टेटमेंट क्या था? एनर्जी Energy कैन can नाइदर neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। ना तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछना है बेटा? कुछ नहीं ताऊ जी, गलती से माइक ऑन कर ओके। दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब एनर्जी क्रिएट हम कर नहीं सकते हैं, तो अब जब तुम ढलान पे चला रहे हो तब तो ठीक है, तुम्हें जोर नहीं आएगा। पर अगर तुम पहाड़ पे ऊंची सड़क पे चला, मतलब सड़क ऐसे जा रही एंड यू आर साइकिलिंग अपहिल, ऊपर की तरफ चलाना है तुमको साइकिल को, तो ऐसे सिचुएशन में तुम रेशो 10-20 रखना चाहोगे या तुम रेशो रखना चाहोगे 40-20, यानी उल्टा करना चाहोगे कि यहां पर तुम अब अगर इसको 2 चक्कर घुमाओगे तब जाकर ये एक चक्कर घूमेगा। अभी क्या होगा? व्हील 1 को एक चक्कर घुमाओगे तो व्हील 2 कितने चक्कर, व्हील 2 को एक चक्कर घुमाओगे तो व्हील 1 कितने चक्कर घूमेगा? 2। इसमें 20 ही दांतें हैं तो आधा चक्कर ही घूमेगा ये तो। 40, इसको पूरा घूमने के लिए कितने चेन को कितने उसमें से स्लॉट्स में से होकर निकलना पड़ेगा? 40। तो ये तो 20 स्लॉट ही चलेगा चेन में, तो चेन के 20 स्लॉट ही मूव करेंगे। यहाँ पे 20 स्लॉट मूव करेंगे तो आधा चक्कर घूमेगा ये। तो ये जब 2 चक्कर कर रहा होगा तो ये एक चक्कर करेगा, है ना। ये 2 CPS पे चल रहा होगा व्हील नंबर 2, तो ये एक चक्कर करेगा। यानी तुम्हारे पैडल 2 चक्कर मार दोगे तब ये एक चक्कर चलेगा ऊपर। क्या ये हेल्पफुल होगा पहाड़ चढ़ने में? नहीं। अनीश बताएगा, अनीश ने पहाड़ को चढ़ा है। अनीश बताओ बेटा, विच सिचुएशन इज हेल्पफुल, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी टू क्लाइंब ए हिल? वो यहाँ पे है ही नहीं, गया? सिर्फ यूवी का पे और आप है। ओके, सो जब बच्चे ही भाग गए तो हम क्लास खत्म करते हैं बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म, तुम लोग सोच के देखना इसके बारे में, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार साइकिल को अच्छे से देखना, गियर्स को समझने की कोशिश करना, फिर हम बात करते हैं आगे। सर मैं आपसे बात करूं सर? हाँ बोलो। सर आप